congratulations for this Manager of the Year award that you're going to be getting in Toronto tomorrow from Billboard. Thank you so much. To imagine such big dreams for this man. When it comes to dreaming big and all these achievements that has happened in his life, वो सब दिलजीत के खुद के सपने थे. He always had this grand vision for his career. अभी रिसेंटली जैसे BC प्ले स्टेडियम में वैंकूवर में जिस तरीके का जो हुआ, आई थिंक टेलर स्विफ्ट के बाद में किसी अदर आर्टिस्ट ने किया है तो वो दिलजीत ने किया है. It was his years and years of dedication, years and years of consistency. This was biggest ever stadium concert and tour for any Indian artist. दिलजीत के साथ में जो हो रहा है, इंडिया में कोई भी आर्टिस्ट, मतलब मैं कहता हूँ कि इवन जो बड़े से बड़े जो सुपरस्टार्स हैं फिल्म्स में भी, they have not experienced anything remotely close to what he has experienced. He always wanted Punjabi to rule or go global. He's not left that authenticity. ये जो इनका नॉर्थ अमेरिका का भी डिडोमिनाटी टूर जो भी इनका हुआ है, so मैं एक जगह पढ़ रहा था कि $27 million is something that Yeah, close to $28 million is the revenue that it generated. which is like insane absolutely. This is the Diljit Dosanjh year. I think चमकीला जाहिर सी बात आई है. This is the Diljit Dosanjh year yet, and I'm sure there will be bigger years. इंशाल्लाह, वो तो खैर उसमें कोई डाउट ही नहीं है. Whether it is his film or it's a money winning or performance, वो इतने प्यार से उसको full enjoy करके perform करके deliver करते हैं ना कि वो शायद वही travel करता है. मैंने प्रभास को वैसे आज तक नहीं देखा जैसा वो दिलजीत के साथ में उन्होंने वो जो बहुत sweet. पगड़ी पहन के जिन्होंने किया है. That's very kind of him कि उन्होंने वो costume पहनने के लिए भी agree किया. He was very excited. Like we were really looking forward to that moment where we see this Bahubali in this Punjabi attire. जितना प्यार लोग दिलजीत को करते हैं, उतना ही प्यार मैंने भी रिसीव किया उनके फैंस के थ्रू. मतलब सच में मुझे नहीं लगता और किसी की मैनेजर की लाइफ की जर्नी में रहा होगा. टुडे व्हेन I am receiving an award of Global Manager of the Year, that is only possible because there is a global artist that I represent. Hi, this is Sonali Singh. You're watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए. मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जब ठाना, कुछ ऐसा ठाना कि दुनिया जो है वो एक उनके सामने झुक गई और एक ऐसा अचीवमेंट उन्होंने हासिल कराया जो कि मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उन पे फ़ख्र महसूस कर रही है. मेरे साथ में सोनाली सिंह हैं. बहुत बहुत स्वागत आपका कनेक्ट सिने पे पहली. Thank you so much for lovely introduction. No, seriously, I mean it, and congratulations for this Manager of the Year award that you're going to be getting in Toronto tomorrow from Billboard. Thank you so much. And I think richly deserved. You've been having a phenomenal year. So tell me, what does this award mean to you? I'm not able to feel anything, to be honest. I didn't expect it. It came very surprisingly. It came to me quite surprising because I could not even imagine someone from India getting Global Manager of the Year in an international market so soon. So I'm grateful. And yeah, I'm still sinking in. मैं बहुत सालों से आपको जानता हूँ, बहुत सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की. लेकिन मैं आपसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, जिस तरीके से, जिस रिस्पेक्ट से लोग आपके बारे में बात करते हैं, स्पेशली द वे यू हैव बीन मैनेजिंग आई थिंक दिलजीत दोसांझ, इट्स फिनोमिनल एंड आई फील सो प्राउड एज वेल. उसके अलावा यूनानिमसली एंड पीपल हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू बिकॉज जिस तरीके से क्रिएटिवली आपने इमेजिन किया है बहुत सी चीज़ें उनके लिए. मैनिफेस्टेशन की हम लोग बातें करते हैं, लेकिन ये है कि उसको एक्चुअली कर दिखाना आसान नहीं है. ये कैसे आप इतना बड़ा सोचना, ये कहाँ से आता है आपके अंदर to imagine such big dreams for this man? It's actually the other way around. It's him who has been dreaming big, who's been imagining these great things. I'm just aligning with his energy and trying to bring this to reality. जितना बड़ा ये whether it's tour or his career or his achievements, all of it was his own dream. It wasn't my manifestation. I think it is his manifestation. So when it comes to dreaming big and all these achievements that has happened in his life, वो सब दिलजीत के खुद के सपने थे. और अब से नहीं, शायद मेरे ख्याल से जब से मैं जानती हूँ उन्होंने अपना करियर शुरू किया, या जितने भी लोग उनके साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं,
वो तब से बोलते हैं कि he always had this grand vision for his career. I think it's his manifestation, and उस manifestation के बीच में कुदरत ने मेरे को एक सही alignment में रख दिया है बस, और मैं उसको execute कर पा रही हूँ. तो जो भी creative aspect आप देखते हैं उनके tour से related, उनके song से related, उनके music से related, वो सारी creative input is completely Diljit's own creativity. I just handle the execution part of making it into reality. मेरा contribution उतना ही है. तो देखिए टी.एस. एलियट बहुत मशहूर एक शायर थे, उन्होंने कहा है कि दैट द ओनली विजडम आई कैन थिंक ऑफ इज द विजडम ऑफ ह्यूमिलिटी. तो आप ह्यूमिलिटी का बहुत मुजाहरा आप करती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. लेकिन दिलजीत ने खुद भी ये कहा है कि कोचेला का जो पूरा आइडिया था जिस तरीके से, दैट वाज समथिंग, सोनाली का आई थिंक वो अगेन आइडिया उनका था, सपना उनका था, हाँ एग्जीक्यूशन में मैंने ज़रूर हेल्प की है. सो रिसेंटली यो हनी सिंह का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात करी कि दैट दिलजीत की एक आई थिंक बहुत बड़ा जो फैक्टर उनकी कामयाबी में है कि दैट ही बिलीव्स इन हिज टीम, एंड ही सबको वो एक साथ वो लेके वो आई थिंक वो चलते हैं. आई थिंक विच इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल एज वेल. सो ये जो कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें आपके और दिलजीत के बीच में, वो कैसे होता है? बिकॉज देखिए मैं यहाँ पर मैं आपसे ये इस तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जैसे बीसी प्ले स्टेडियम में वैंकूवर में जिस तरीके का जो हुआ, आई थिंक टेलर स्विफ्ट के बाद में किसी अगर आर्टिस्ट ने किया है तो वो दिलजीत ने किया है. यहाँ पर टोरंटो में रॉजर्स एरिना में जो हुआ वो हिस्टोरिक रहा है. नॉर्थ अमेरिका, यूएस में ऑल द शोज विच हैव हैपेंड. देखिए वीकेंड के ऊपर पब्लिक को लेके आना मुश्किल होता है, यहाँ तो वीकडेज के अंदर बंदा 15-20 हज़ार लोगों को वो लेके आ रहे हैं. ये सारा जो एक पूरा एक कोलैबोरेशन था, ये इमेजिन कर पाना, वो सब में किस तरीके कोलैबोरेशन था आपका और दिलजीत का? सी अगर आप देखें ना, दिलजीत अब से नहीं, ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड हैज हैपेंड दैट ही इज बीन टूरिंग. एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि ही हैज बीन सेलिंग आउट अरीनास इवन बिफोर इंडियन म्यूजिक एग्जिस्टेड ऑन स्पॉटिफाई. आज की डेट में हम लोग स्पॉटिफाई स्ट्रीम से जज करते हैं, स्पॉटिफाई नंबर से जज करते हैं. He was still selling out even when he wasn't even there on Spotify. His music was not there on Spotify. He always had this following, and he's built it over the period of time. And it was his years and years of dedication, years and years of uh, consistency, that now maybe people have realized that there was nobody else who can actually who sustained for so many years and who is still relevant. He was relevant from his first album. He was very popular in his early days as well, and he still sounds so fresh. He still sounds so new, and it feels like he's just starting out. And yes, this was biggest ever stadium concert and tour for any Indian artist. But it's his dedication and consistency for over like really long period of time. Right, अभी आई थिंक लंदन में बैक टू बैक 3 दिन आई थिंक शोज उनके हैं, which is absolutely brilliant. फॉर एग्जांपल बात करें जो सबको लाइट्स जो सारे ऑडियंस में होता है, वो कैसे प्लान, हाउ डू यू गाइस प्लान ऑन समथिंग लाइक दिस? बिकॉज कंप्लीट अंधेरा है, वो सब रोशनी, बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली सरियल बिकॉज आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ कॉन्सर्ट्स ओवर द ईयर्स, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही यूनिक था, एंड इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड एज वेल. तो वो कैसे होता है, क्या उसका व्हाट्स द एंटायर आइडिया बिहाइंड दैट? इफ यू आस्क मी द प्रोसेस ऑफ इट, हम लोग बहुत रिहर्सल्स भी करते हैं, और जितनी दिलजीत रिसर्च करते हैं ना, मतलब वो सारे कॉन्सर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड जो हो रहे हैं, व्हाट न्यू कैन बी एडेड टू द शो, व्हाट न्यू एलिमेंट कैन वी ब्रिंग टू द टूर, इट्स हिज आइडिया. देन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, हु इज़ द राइट पर्सन, व्हाट वुड बी द राइट टीम, व्हाट इज़ द राइट वेंडर दैट आई शुड हायर, हाउ डू आई एग्जीक्यूट इट, इज़ माई रोल. एंड देन उसकी रिहर्सल्स होती है. और एक और भी चीज़ है कि ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, और ये ऐसा नहीं है कि ये पहला टूर था एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस ग्रैंड सक्सेस. हमने पिछले कुछ टूर में बहुत सारी गलतियाँ भी की, या जब शुरू किया था इंटरनेशनल टूर करना, तो तब इतना स्मूथ नहीं था. जब पहली बार किया तो बहुत ब्लंडर्स हुए. कई बारी वेंडर्स टाइम पे प्रोडक्शन नहीं पहुंचा रहे हैं जी. कई बारी वेंडर्स ने कमिट कुछ किया बट एक्चुअली में इन्वेंट्री कुछ और आई. ये सब भी हुआ है. ये सारी गलतियों के साथ सीखने के बाद करते 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 आफ्टर लाइक रियली long time we've been able to set up a system, set up a process. Now I can say it's mostly like plug and play,
but it has actually like we've dedicated a lot of time towards making it happen in such smooth manner that it looks like it's very well organized. But हमने बहुत गलतियां की हैं पहले, जिन गलतियों से सीखा है. नहीं, आई एम श्योर कि वो तो मेरे ख्याल से वो आई थिंक हर कोई गलती करता है, लेकिन जो मेरा ज़ाती तजुर्बा था वैंकूवर में, और मैंने बहुत से कॉन्सर्ट्स मैंने देखे हैं, यू नो देयर वाज नॉट अ सिंगल गूफ अप. एंड बहुत बार होता है, देखिए ऑडियो के लेवल पे हो जाता है, साउंड के लेवल पे हो जाता है, कहीं पर जो स्टेप्स होती हैं उसमें कहीं गूफ अप्स हो जाते हैं, कहीं एंट्री में गूफ अप हो जाता है, होते हैं. लेकिन द वे दैट दैट एंटायर एक्सपीरियंस वाज, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. आप मानेंगे दिलजीत हर एक एस्पेक्ट ऑफ द टूर में फुल्ली इन्वॉल्व होता है. ये स्टेडियम था हमारे लिए पहला एक ऐसा बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था जहाँ पे more than 55,000 people were coming all together. He spent entire day, a day prior to the show, just fixing the sound. Just making sure that every single corner of the stadium should be able to receive the performance that he wants to deliver. And और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आ गए टीम के साथ चेक कर लिया, रिहर्सल कर लिया. He went to every single corner of the stadium himself and experienced it कि यहाँ बैठ के कैसी साउंड आएगी, उस कॉर्नर में बैठ के कैसे साउंड आएगी. And I think and that goes into every single element. वो डांस परफॉर्मेंसेस क्या होने वाली हैं, who will be the dancers, what's gonna be the costume, ये सारी चीज़ें उनसे अप्रूव होती हैं. ये सारी चीज़ों में उनका खुद का एक विजन होता है. तो ये सब विजुअल्स क्या चलेंगे, लाइट्स कैसी होनी चाहिए, कौन से गाने में मेरी एलईडी पे क्या चलने वाला है, ये सारा कुछ क्रिएटिव एलिमेंट, एवरी सिंगल थिंग हैज़ हिज अटेंशन एंड इनपुट. यूएस में एक बहुत बड़े प्रमोटर हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, और उन्होंने बताया कि दैट दिलजीत के जब जैसे शोज़ जिस तरीके से होते हैं, सो सर्टेन प्रॉप्स जो चाहिए होते हैं, दैट समथिंग दैट सोनाली वांट्स. एंड वो और किसी आर्टिस्ट का कभी नहीं होता, लेकिन शी हैज़ दैट आइडिया कि दैट ये दिस इज़ व्हाट इट शुड हैपन, और वो उसको मनवाती हैं अपनी बात को. और जब वो फाइनल जब कॉन्सर्ट होता है, उसकी वैल्यू जो सामने आती है, दैट्स समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. तो कुछ ना कुछ तो आप सोनाली जी कर रही हैं आप. नहीं, पर मैं आपको फिर भी यही करेक्ट करती हूँ. तो ये सच में अगर जैसे प्रॉप्स भी हुए या जो ओवरऑल कोरियोग्राफी है परफॉर्मेंस की, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस डिलीवरी है, वो सारी क्रिएटिव एलिमेंट एंड आइडिएशन कम्स फ्रॉम दिलजीत. आई एग्जीक्यूट इट. उन्होंने ये बताया कि मुझे विजुअल ऐसा चाहिए, वो विजुअल ऐसा कैसे आएगा इज माय रोल. उनको नेक्स्ट टाइम एलईडी बैंड्स चाहिए टूर पे, वो कैसे आएंगे इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. द एंटायर बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस डिसीजंस, दे आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. एवरीथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिव साइड ऑफ द टूर और हिज म्यूजिक वीडियो, दैट इज completely his own contribution. I contribute nothing on creative side of the tour. No, I'm sure. I think it's always a team effort, because जो दिलजीत के साथ में जो हो रहा है, मुझे लगता है आई थिंक इंडिया में कोई भी आर्टिस्ट, मतलब मैं कहता हूँ कि इवन जो बड़े से बड़े जो सुपरस्टार्स हैं फिल्म्स में भी, they have not experienced anything remotely close to what he has experienced. और वो जिस तरीके का उन्होंने एक जो यार्डस्टिक बना दिया है, वो मुझे लगता है कि सालों साल लगेंगे लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो आई थिंक टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. मुझे ये भी देखिए, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे विद इन आपकी टीम से ही मिली है, कि जो म्यूजिशियंस की जो क्वालिटी है, दैट समथिंग दैट कि एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी म्यूजिशियंस की होनी चाहिए. वहाँ पर भी सोनाली का कंट्रीब्यूशन रहता है इन टर्म्स ऑफ. I pick and choose people, but again, they spend quite a lot of time with Diljit. He rehearse with them. We do before every single tour. जबकि ये हमारे musicians हमारे साथ काफ़ी टाइम से हैं. कभी ऐसे दिलजीत उसको लाइटली नहीं लेते हैं कि अब तो पिछले टूर तो किया ही था, अभी तो रिहर्सल की थी, या अभी इस बार रिहर्सल नहीं करेंगे. हर टूर स्टार्ट होने से पहले there is like a good number of days that we spend for rehearsals in Bombay. And even before the show when we reach to the respective city, तो उन सब के साथ उतना ही टाइम दिलजीत खुद भी स्पेंड करते हैं. और अगर कोई भी ऐसा म्यूजिशियन उनको लगता है इज नॉट एबल टू कैच अप टू हिज एक्सपेक्टेशन, देन वी ट्राई एंड स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर म्यूजिशियन along with our arrangers and music composers and producers. We train them and like we really put in a lot of effort in working with them in this journey. So
yeah, I mean, I just pick and choose people from the industry and I feel this would be the right person. पर उसको उस लेवल तक लेके आने में अगेन दिलजीत का खुद का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है. He himself spends time with them. एब्सोल्युटली. वैंकूवर में शो से बाहर आई स्पोक टू अ फ्यू पीपल, एटलीस्ट 2-3 में फॉरेनर्स से मेरी बात हुई जो एंड दे वर स्टैंडिंग ओवर देयर एंड वो बहुत एक्साइटेड थे शो के लिए. 1-2 तो ऑफिशियल्स भी थे और उनको नाम भी पता थे गानों के. सो एक लेडी थी एंड यू नो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा गाना आपको पसंद है, तो शी सेड डू यू नो एंड लवर एंड दिस एंड दैट. अब जो एक इंग्लिश हुक लाइंस, और बंदा पंजाबी है, देसी बंदा है, उनके सारे जो रील्स हैं वो उसमें मतलब मज़ा आ जाता है पंजाबी सुन के, एकदम ठेठ पंजाबी, एकदम बिल्कुल ट्वीट्स में भी जो भी है. लेकिन यहाँ पर ही इज़ हैविंग हुक लाइन्स विच आर इन इंग्लिश एंड दैट हैज़ लिटरली टेकन हिम टू द वर्ल्ड. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्पेनिश और नॉर्थ कोरियन म्यूजिक का जिस तरीके का है, दैट इज समथिंग दैट लेवल दिलजीत हैज़ अचीव्ड एंड दुनिया भर के लोग अभी उनको सेलिब्रेट करने वाले हैं. जैसे यो हनी सिंह ने मुझसे कहा कि ब्रूनो मार्स को बीट कर सकते हैं, 100,000 लोगों को भरेंगे वो स्टेडियम में और वाइट लोग होंगे उसके अंदर. तो यहाँ पर इंटेंस के साथ में कोलैबोरेशन फॉर एग्जांपल करना है. इंटेंस की जो बैकग्राउंड है वो डेफ लेपर्ड को भी उनको पसंद है, उनको पंजाबी ठेठ पंजाबी भी उनको पसंद है, वो ब्लेंड करते हैं. वो सारे डिसीजंस कैसे होते हैं? That's his decision. He researches, he's listening to every single music that is being released. नए से नया म्यूजिक अगर किसी का भी आया है, कोई नया सिंगर है, कोई नया प्रोड्यूसर है, नया राइटर है, कोई ऐसा कोई सॉन्ग ऐसा नहीं होगा जो वो मिस कर देंगे कहीं पे भी. He's always updated on charts. He's always updated कि कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या म्यूजिक चल रहा है. Not just in India. बॉम्बे में लोग क्या सुन रहे हैं, पंजाब में क्या सुन रहे हैं, लैटिन में क्या सुन रहे हैं, या फिर एफ्रोबीट्स अगर है तो उसमें सबसे पॉपुलर क्या चल रहा है, ग्लोबल चार्ट्स पे क्या चल रहा है. ही इज़ वेरी वेल अपडेटेड. हिज रिसर्च ऑन म्यूजिक एंड कंटेंट एंड touring is phenomenal. And he does dedicate his a lot of time in learning so much new things, and he keeps himself updated, hence he sounds so fresh. He's so educated in his work. Or but you know what I feel is quite unique about him, that he's going global, uh, but not leaving his authentic self. Right. He is still carrying his culture, tradition, wearing it proudly, and taking it to global music scene, taking it to global scene, not trying to compromise in his sound and authenticity in order to make some space into the global world. वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मुझे कहीं पे फिट इन होना है तो मुझे ये बदलना पड़ेगा, या मुझे मैं पंजाबी छोड़ के इंग्लिश गाना गाने लगता हूँ क्योंकि शायद वो ग्लोबली लोग ज़्यादा सुनेंगे. ही ऑलवेज वांटेड पंजाबी टू रूल और गो ग्लोबल. He's not left that authenticity, and he will always carry that sound, and we'll still be able to make it work. राइट. जैसे अब हनी सिंह ने जो मुझसे कहा कि ब्रूनो मार्स को बीट कर सकते हैं और 100,000 लोगों को भर सकते हैं, अब वाइट लोगों को, कैसे देखती हैं आप इस स्टेटमेंट को? बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल, काफ़ी ज़्यादा इट्स बीइंग शेयर अ लॉट. मतलब देखो, ड्रीम्स और विजन तो ऑब्वियसली दिल से यही चाहेंगे कि ये होगा, और शायद जल्दी ही होगा. बट दिलजीत जैसे हमेशा बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि कल सुबह के मोमेंट में हमारे साथ क्या होने वाला है, या नेक्स्ट पल में हमारे साथ क्या होने वाला है. तो बिकॉज वी डोंट डिसाइड आवर डेस्टिनीज. आई मीन लेट्स सी हाउ यूनिवर्स हेल्प्स. स्वीटी ने, आई थिंक शी हैज सेड दैट द कोलैबोरेशन दैट शी रियली लाइक द मोस्ट वाज विद दिलजीत. तो ये एक जो वेस्टर्न वर्ल्ड में फिर वो जिस तरीके से वो अभी परफॉर्म किया उन्होंने लेट नाइट शो में, that was historical as well. How do you look at this interest as far as the Western world in Diljit Dosanjh? सी कोई भी चीज़ ना इंडिपेंडेंटली ऐसे नहीं हुई है कि मतलब ही रीच्ड आउट टू जिमी फैलन एंड देन टुडे सडनली ही फेल्ट लाइक कि हाँ मतलब ये बहुत रेलेवेंट है. आई थिंक ये जो इतने सालों से जो सारी चीज़ें बिल्ड होती गई ना, वेदर द नंबर ऑफ टिकट्स ही वाज एबल टू सेल इन अरीनाज एंड स्टेडियम्स नाउ, उसका अपना एक डेटा बाहर जाता है, उसके अपने आप एक नंबर्स बाहर जाते हैं, उसका पीआर कितना हुआ, उसका ट्रैक्शन कितना है, वो कितना रेलेवेंट है उनके यूएस मार्केट में. हिज फिल्म्स आल्सो, हिज फिल्म्स हैव बीन हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म्स इन अमेरिकन बॉक्स ऑफिस. ये सारी इंफॉर्मेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू बी एबल टू ब्रेक थ्रू. सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छा एक
कॉन्सर्ट हिट हो गया या एक गाना हिट हो गया जिसकी वजह से ये हुआ. Hmm. It's combination of everything, and everything over a period of years of Hmm. dedication and hard work. Right, but I think this year has been really big for him. उन्होंने पहले भी वेम्बली स्टेडियम उन्होंने पूरे भरे हैं, वो सब चीज़ें हुई हैं उनके साथ में. ये जो इनका नॉर्थ अमेरिका का भी डिडोमिनाटी टूर जो भी इनका हुआ है, सो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि $27 million is something that Yeah, close to $28 million is the revenue that it generated. which is like insane absolutely. So in fact जब टोरंटो में इनका कॉन्सर्ट होने वाला था तो मैं randomly I was just doing my research and मैंने देखा टिकट्स में जो एक्चुअल टिकट्स थे उसमें there was एक रीसेल ticket was there for $22,000 Mhm. which is like which is Crazy, I know. And $19,000 $22,000 which is like insane amount there of were some tickets around $64,000 as well. And Hmm. surprisingly, there were people who are reselling it, and there are people who are buying from those resellers as well on that price. Hmm. That was not our official price and right ticket prices. We did not keep it that way. But there's a trend like people usually buy upfront and then they resell on the marketplace. There were people selling tickets at $64,000, $55,000, and there were buyers. मुझे लगता है कि ये इन सब चीज़ों के बारे में इंडियन मीडिया में उतनी बात हुई नहीं है जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही फैसिनेटिंग केस स्टडी है द वे थिंग्स आर हैपनिंग. टेलर स्विफ्ट फॉर एग्जांपल जब वो कॉन्सर्ट्स के लिए जाती हैं so she actually contributes to the economy of that particular place and that's exactly what Diljit Dosanjh has been doing as well. We have done a economic impact research. I think those reports will also be published soon. The reports are really amazing. I mean, when you look at those numbers and you look at the impact that it had, you really can't believe that an Indian artist is also able to bring that kind of impactful impression to a country. No, absolutely. Like for example, Vancouver, मेरे सामने कुछ लोग Seattle से आए हुए थे, and obviously they must be staying in a hotel. In fact, the hotel next to BC Place Stadium, उन्होंने तो पूरा एक statement भी उनका आया था कि Yes, I know. earplugs and all those उन्होंने दिए थे. So I think people from various parts of Canada, various parts of US, California, they came for that concert. I'm just giving one example because मैं वहाँ पर मौजूद था. और उसमें भी जिस तरीके से merchandising जिस तरीके की थी वहाँ पर T-shirts and other things whatsoever, and 55,000 people अगर वहाँ पर हैं तो in terms of cafeteria and the works, it's phenomenal. Just to even think of So parking for example. As per the report, there were 22,000 people who flew down from other cities to attend to his concert. Must be, I think वो एक value है. वो एक value लेके आ पाना is truly sensational. And now I think remaining part of the year he's performing in Europe, he's performing in Dubai, Abu Dhabi, and then he's having like a 10-city India tour as well. Yes. This is the Diljit Dosanjh year. I think वो चमकीला जाहिर सी बात आई है. This is the Diljit Dosanjh year yet, and I'm sure there will be bigger years. इंशाल्लाह, वो तो खैर उसमें कोई डाउट ही नहीं है. लेकिन ये जो साल है, ये एक मुझे लगता है कि जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ, केस स्टडी के तरीके से देखा जाएगा. What he has managed to achieve, and very down to earth guy. We'll come to that later. But अभी जो आने वाले concerts हैं, अगर प्लीज आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें. See again, like our UK tour, when we announced London O2, that got sold out in 2 days. We were hesitant to do another second show. And the day we announced the second show, more than 12,000 tickets were gone in like just a couple of hours. And very next day, the second show also went completely sold out. Now we announced third day. And when we were planning for the third day, he was still, considering should we do it or not. Then as per the reports what Live Nation shared, that there were 80,000 people waiting in queue on day 2 for tickets, for his tickets. It was a huge number. Now we realize we should have booked the stadium. I think it'll happen. It'll eventually happen. It'll happen. And I think he's performing in Germany, and that again, Europe was a market where nobody expected that we'll be like any Indian artist for that matter has not done any tour in Europe as much. There wasn't any data to support whether this market is the relevant market for any Indian artist or not. And they're completely sold out. Amsterdam, Germany, Italy, Paris, Dusseldorf, I mean everything is going to be out. And then Abu Dhabi and I think Abu Dhabi again, it's going to be again, we've already sold close to 30,000 tickets, highest for any Indian artist as yet.
राइट एंड ही इज हैविंग आई थिंक पंजाबी का तो आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दुनिया भर में बहुत सारे पंजाबीज भी आई थिंक मौजूद हैं और बहुत से लोग जो पंजाबी नहीं भी जानते हैं lot of people who come for his concerts they don't know the language but the fact is they come for the vibe एक तो कोई बैठता नहीं है कॉन्सर्ट में Yes. आप पूरे टाइम खड़े रहोगे मतलब एक कुड़ी आएगा तो आप अलग जोन में चले जाओगे बट द फैक्ट इज देन वंस अगेन यू आर ट्रांसपोर्टेड टू अनदर जोन लाइक सो आपको बंदा बैठता नहीं है एक और खूबसूरत बात ये भी है कि उनके कॉन्सर्ट में ना हर जनरेशन के लोग उतने ही प्यार और उतनी ही शिद्दत से उनका कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं राइट फ्रॉम मे बी जस्ट 5 years old kid to 75-year-old elderly people सब कोई उनको बहुत प्यार करता है उनसे एक कनेक्शन फील करते हैं और हर किसी को वो अपनी फैमिली का एक पार्ट जैसा लगता है जैसे शायद पेरेंट्स में फील दैट यू नो माय सन शुड बी लाइक हिम राइट or women would feel like you know my husband or my boyfriend should be like him my son-in-law or you know and like that's the kind of connect that people feel with him that's very rare you know you can be a fan to someone and that could also be very temporarily or he's been able to create this for almost more than 2 decades ये जो कॉन्सर्ट्स में जो सब कुछ हो रहा है जैसे हम माइकल जैक्सन के देखते हैं डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और भी बहुत से आर्टिस्ट के हम देखते हैं क्या इस तरीके का हम कुछ देख सकते हैं कि इल्यूमिनाटी टूर से रिलेटेड कोई हम शूट तो बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत सारे एडिट्स भी रेडी किए हैं बट हिज विजन इज समथिंग एल्स he still wants to kind of wait for it and wait for the right moment with the right team it will definitely come but we've been shooting constantly we've been collecting all the information and documenting his journey otherwise अगर हम कुछ उनकी ह्यूमिलिटी के बारे में बात करें आई थिंक he doesn't throw the weight around at all एंड बहुत ही ज्यादा genuinely like that person I think वो भी सेम बात बोलते हैं कि ये सब म्यूजिक के लिए हो रहा है ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है ये साउंड के लिए हो रहा है और मुझे लगता है कि अगर साउंड ने वो फ्रीक्वेंसी चूज की है उनके थ्रू फ्लो होने के लिए तो कितनी मेहनत तो किस मतलब उन्होंने खुद भी की होगी ना टू बी एबल टू बिकम दैट चैनल क्या आपको लगता है कि अगर उनकी एक्टिंग की बात करें उनका म्यूजिक का जो उनका पूरा जो पर्सोना है वो इतना बड़ा बन चुका है ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर चमकीला में जो उनका परफॉर्मेंस है कमाल का परफॉर्मेंस है आपको लगता है कि शायद उतना हाईलाइट नहीं होता है उनके एक्टिंग का जितना कि मे बी होना चाहिए ही इज वन ऑफ द बेस्ट मे बी एक्टर्स दैट वी हैव एज ऑफ नाउ maybe because he is doing very limited roles and not picking up any film left right center like he receives a lot of projects but he's been only able to pick up or he's only uh, selecting very very few projects that he feels very close to but whatever he has done like for example Chamkila is I think one of the best films in Indian film industry and बहुत सारे लोगों ने उसको उसके फीडबैक के तौर पे ये बोला है कि अगर किसी को फिल्म स्टडी करनी है दैट्स अ परफेक्ट film to study filmmaking, film performance wise, music wise, perfect combination of all the right people on a film. Chamkila has been one of the most well reviewed films of this year. लेकिन बाकी उनके सारे जो आई थिंक जो खबरें आती हैं वो इतनी बड़ी बन जाती हैं अब जैसे फॉर एग्जांपल ये भी चीज़ सामने आती है मैं आपको बताऊं कि जैसे सरी में जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर कल की 2898 AD पिक्चर आई थी वो बहुत ज़्यादा चल रही थी सो मुझे मैंने कहा यार पिक्चर बहुत इट्स डूइंग वेरी वेल सो समवन टोल्ड मी कि वो दिलजीत का गाना है उसके अंदर प्रभास के साथ में तो वो एक फैक्टर है कि दैट पंजाबी उसको खूब जाके देख रहे हैं सो अभी जब जो उनकी कोलैबोरेशन है जैसे प्रभास के साथ में है फॉर एग्जांपल या फिर नैना जो गाना उनका क्रू का बहुत ज़्यादा बहुत से लोगों का मानना ये है कि फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पे भी उसका असर पड़ा है हिज प्रेजेंस इन द फिल्म एंड द फैक्ट दैट द सॉन्ग बिकेम वेरी वेरी बिग सो इन कोलैबोरेशंस को आप कैसे देखते हैं एंड हाउ ही इज कंट्रीब्यूटिंग वो अनंत अंबानी की उसमें जाते हैं संगीत में नहीं वो जब प्री वेडिंग जो था वहाँ पर और लोग कहते हैं कि मे बी सबके बियॉन्ड वो आगे चले जाते हैं द वे ही वाज रिसीव्ड वाज फिनोमिनल How do you look at this? मुझे लगता है वो ना वो खुद इतने प्यारे इंसान है ना कि वो जो भी करते हैं ना लोगों को उसमें प्यार ही दिखता है और शायद इसलिए और बिकॉज लोग उनको उस चीज को लेके बहुत प्यार करते हैं दैट एवरीथिंग ही डज पीपल लव इट पीपल लाइक टू वॉच हिम लाइक दैट और वो दिलजीत से भी बहुत ऑनेस्टी से आता है कुछ फेक नहीं दिखाने की कोशिश हो रही है कुछ ऊपर से कुछ जताने की कोशिश नहीं है जो जैसा है वो वैसा ही उसको फुल एंजॉय करके whether it is his film or it's a money wedding or performance or Naina song or any subject that he's taken
वो इतने प्यार से उसको फुल एंजॉय करके परफॉर्म करके डिलीवर करते हैं ना कि वो शायद वही ट्रैवल करते हैं आगे। मैंने प्रभास को वैसे आज तक नहीं देखा जैसा वो दिलजीत के साथ में उन्होंने वो जो बहुत स्वीट पगड़ी वगड़ी पहन के जो उन्होंने किया है, आई थिंक दैट वाज फिनोमिनल। दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने वो कॉस्ट्यूम पहनने के लिए भी एग्री किया। ही वाज वेरी एक्साइटेड, दैट मीटिंग वाज रियली ब्यूटीफुल। और हम लोग तो दिलजीत भी और मैं भी, हम लोग तो वो बाहुबली के फैन थे ना, लाइक वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मोमेंट वेयर वी सी दिस बाहुबली इन दिस पंजाबी अटायर एंड दैट एक्चुअली लुक्ड रियली गुड ऑन हिम। और सो सोनाली, जब जब मकबूलियत है, जब फेम है, कामयाबी है, तो उसके फ्लिप साइड भी होता है, जेलसीज होती हैं और पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन, नेगेटिव स्टोरीज एट टाइम्स प्लांट की जाती हैं मीडिया के अंदर। वहाँ पर आपका एज अ मैनेजर आपका रोल जो है काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। हाउ डू यू जस्ट डील विद सच सिचुएशंस, ट्रिकी सिचुएशंस दैट हैपन एट टाइम्स? एक ना बहुत अच्छी चीज़ मैंने हमेशा एक्चुअली दिलजीत से ही सीखी है। वो हमेशा किसी भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन को वो अपनी एक टेस्ट की तरह लेते हैं कि ना कुदरत ने एक प्लांट किया है टू चेक माय रिएक्शन। और जब आपको ये बात पता हो ना कि ये मेरा रिएक्शन चेक करने के लिए मेरे साथ हो रहा है, then you can consciously handle that situation very well. So if you see most of his situations, you won't see him react in any of those circumstances. Right. I think that's primarily the the way that we deal with this thing as a team, and I've learned that from him only. That there is no need to pay attention to anything that is there to trigger you in certain way. सोनाली, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि आपकी जो पर्सनल आपकी जो स्टोरी है वो आई थिंक बहुत ही फैसिनेटिंग है। आपकी आपकी मदर कितनी एक्साइटेड हैं आपके इस अवार्ड से? what is her first reaction when she came to know that? She was little emotional. उनको वैसे ये तो नहीं पता था कि what is the worth and what is the credibility of an award, of this kind of an award. But उनको इस बात से ज़रूर खुशी थी कि my work is being recognized and I'm being appreciated and acknowledged for the hard work that I had put in. वो थोड़ी emotional थी इस बात को लेके कि अब मुझे अवार्ड मिलेगा, अच्छा मैं बाहर जाऊंगी, मैं ये रिसीव कर रही हूँ। So she was very emotional and very happy about it. आपने मुश्किल आपने दौर आपने देखा है स्पेशली आपके बचपन में, आपके लिए एक कंफर्ट को होना, एक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना, ये सब कितना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है? स्पेशली बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी शख्स ने मुश्किल देखा है, मुश्किल दौर देखा है, उसको भूख का उसको एहसास है, उसको पैसे की कदर है, उसके लिए कामयाबी स्पेशली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। Because I've seen the lowest. I've really seen the lowest where there were days where I did not even have a place to stay. To now where I feel abundant. I feel there is so much that God has blessed me with. अब ना मुझे दोनों ही सिचुएशन में बहुत न्यूट्रल लगता है। मतलब अब मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं ये हूँ, यहाँ हूँ, तो ये भी शायद बहुत ज़्यादा है जो कुदरत से मैंने मांगा नहीं था पर मुझे दिया गया है। अगर वापस ज़िंदगी में वैसा कुछ टाइम आ गया जहाँ से मैं आई हूँ, तो भी मुझे लगेगा कि मेरा तो ये भी नहीं था, जब मिला तब भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था, और जब अगर वापस आए तो शायद उसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। आई जेन्युइनली हैव, एंड आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। मेरा सच में कोई इमोशन नहीं है इस चीज़ को लेके। ग्रैटिट्यूड के अलावा मुझे बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड है फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव इन माई लाइफ, वेदर इट इज़ माई वर्क, वेदर द रिकॉग्निशन दैट आई एम गेटिंग, whether the support that I get from everyone around me, the appreciation that I receive, the respect that you spoke about, ये सारी ही चीज़ें मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और आर्टिस्ट मैनेजर की लाइफ में किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। जितना प्यार लोग दिलजीत को करते हैं, उतना ही प्यार मैंने भी रिसीव किया उनके फैंस के थ्रू, उनके पेयर्स के थ्रू, पीपल अराउंड हिम। और ये मतलब सच में मुझे नहीं लगता और किसी मैनेजर की लाइफ की जर्नी में रहा होगा। I feel extremely grateful for whatever I have, and I am very well prepared for anything that comes in future. Okay, and अगर आप Ripple Effect Studio के बारे में बताएं, that's your baby, and I think it's part of the entire journey as well. When it is that you thought कि आपको एक इस तरीके की कोई कंपनी बनानी चाहिए, आपने टी सीरीज में भी आपने काम किया है, and now having your own company as well. When that happened, and उसकी कामयाबी कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए? Ripple Effect happened very subtly and along the way when I felt, again, it started with finances, of course, because the kind of tours I was producing, a lot of money was actually routing through my personal account, and then that's when my CEO suggested you should have a company.
वो सिर्फ साथ में सिर्फ एक कंपनी खोलने के नाम से खोला था, बट देन आई started taking it like proper professional company seriously, and now everything that we produce, whether it is his tours or now India tour, that is being produced under that company, and I don't think there is any other touring producing company from India that has been able to produce such level of shows. That is just the beginning. I definitely wish to expand it to other aspects, maybe film producing, music, other talent management. All of that is there. I'm happy with where it is right now. In very short span of time, it has got quite good recognition. Finally, any last thoughts on your experience of Diljit as a person? हम आपके reels भी आप लोगों के देखते हैं, बहुत ही I think he's really funny. I think he's got a very good sense of humor. As a person, कितना आपका तजुर्बा उनके साथ में रहा है बहैसियत इंसान? How important is that aspect of him as a human being for you? See, अगर मैं इतना टाइम सस्टेन कर पाई हूँ ना, तो शायद वो इसी वजह से, because of how amazing human being he is. जी. और जैसा आपने बोला जब आप when we started this interview, that there is so much respect that people have for me, there is so much appreciation that people have for me. वो शायद इसीलिए हो पाता है बिकॉज वो सबसे पहले दिलजीत से आता है. एंड स्पेशली यू नो कि इंडिया में, पंजाब में तो खासकर विमेन मैनेजर्स का तो ना तो ट्रेंड था पहले और ना ही वो एक्सेप्टेंस थी. वो ट्रस्ट मेरे में देना और वो एक्सेप्टेंस दिलवाना उस इंडस्ट्री में, वो तभी हो सकता था जब वो खुद दिलजीत से सबसे पहले आता. आई फील रियली प्रिविलेज्ड दैट आई गेट टू वर्क विद अ पर्सन लाइक हिम. और टुडे व्हेन I am receiving an award of Global Manager of the Year, that is only possible because there is a global artist that I represent. I really owe every single aspect of my career to him and his support. This wouldn't have possible without him. Sonali, बातें बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन ये कि I think I understand that you have a very hectic I think day tomorrow. But thank you very much for your time. मैंने भी बड़ी शिद्दत से मेहनत करी. Definitely. So thank you very much. Thank you so much for being patient. No, thank you very much for your time and congratulations once again. And I'm sure that मुझे लगता है कि that the journey has just started because जो अपने ग्लोबल मैनेजर की आपने बात करी है, तो अभी ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह होने वाली. So all the best and thank you very much. Thank you. That is Sonali Singh talking about I think phenomenal journey that she has had. The award that she's going to be getting in Toronto tomorrow, Global Manager of the Year from Billboard. It's I think a huge achievement for the entire Indian community, South Asian community. So congratulations to her and thank you very much for talking to Connect Cine with me. Thank you very much.